Hi friends, in today's session we'll start with electron negativity. Now this electron negativity is completely different than electron gain enthalpy. Do not mix electron negativity with electron gain enthalpy, and it is completely different to this ionization enthalpy also. So ये दोनों terms बहुत ही different है. अब electron negativity क्या है? This is one atom, this is another atom. This atom having one electron, this atom having one electron. And due to this one electron, they shared one electron, and there is a bond between A and B. But out of these two atoms, if one atom is less electronegative and another is more electronegative, so tendency to share this electron towards two more electronegative element, that is called as B element. So this is called electronegativity. Tendency to attract electron towards the more negative element in atom in bonded state is known as electronegativity. Once again, this is not a quantitative term. जैसे आप ionization enthalpy and electron gain enthalpy measure कर सकते हो. Ionization enthalpy is positive and unit is kilojoule per mole or joule per mole, while in case of electron gain enthalpy is negative. Once again, unit is kilojoule per mole or joule per mole. This is not a measurable quantity. This is a arbitrary quantity given by Linus Pauling. आगे बढ़ते हैं. So electron negativity is nothing. Tendency to attract electron to atom is called as electron negativity. It's very different to this ionization enthalpy as well as electron gain enthalpy. It's a property of atom in bonded state. Most important चीज ionization enthalpy and electron gain enthalpy कभी भी bonded state के लिए नहीं है. वो isolated atom species और gaseous element के लिए है. Here in case atom is in bonded state, तब electron negativity की बात होती है, not for the isolated gaseous state. It's a क्वालिटेटिव टर्म गिवन बाय दिस लिनस पॉलिंग्स. लिनस पॉलिंग के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए, जैसे फर्स्ट इज पॉलिंग स्केल, सेकंड इज मुलिकन-जेफ स्केल एंड थर्ड इज आल्ब्रेट-रॉचाउ स्केल. बट लिनस पॉलिंग इज सक्सेसफुली गिव एंड नाउअडेज आल्सो वी आर यूजिंग पॉलिंग स्केल. अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल, पॉलिंग असाइन अ आर्बिट्ररी वैल्यू 4 टू दिस फ्लोरीन. फ्लोरीन को 4 वैल्यू दे दिया आर्बिट्ररली. क्यों दिया, कैसे दिया, कोई मेजरमेंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है. ही गिव्स 4 वैल्यू टू दिस फ्लोरीन एंड राइट टू लेफ्ट जाते जाते वो कम होती जाती है, और यू कैन से दैट लेफ्ट टू राइट जाते जाते बढ़ती है. दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. सो दिस इज 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 3.54. मीन्स 0.5 डिक्रीज होती जा रही है, और यू कैन से दैट 0.5 is increase होती जा रही है. So this is all about your electron negativity. So here in case this is A atom and B atom, see more electron negative species are attracted by means of this, and due to this this is called electron negative. This is completely different from ionization enthalpy and electron gain enthalpy. This is a measurable quantity, while in case of electron negativity is not at all measurable quantity. 4 different scale are available, that is Pauling scale, Mulliken-Jeff scale, Alfred-Rochow scale. But out of this Pauling scale is really very important one. Pauling gives 4 value to this fluorine. Fluorine को 4 value arbitrarily दे दिया. Now fluorine having 4, then 0.5 decreases, oxygen 3.5, 3, 2.5, 2, 1.51. लाइकवाइज नेक्स्ट पीरियड के अंदर 0.3 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. दैट इज सोडियम टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. क्लोरीन 4 से डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी जस्ट बिकॉज साइज इंक्रीज होता जाएगा. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, एंड ड्यू टू दिस फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, electron negativity is decreases. So here in case chlorine having 3, then 2.5, 2.1, 1.8, 1.5, 1.2, 0.9. So यहाँ पे भी 0.3 का difference आ रहा है. So you can clearly say the A atom having electron negative is 1.5, B has 3.0. So tendency to attract this electron pair towards to B. This is called electron negativity. एक और एग्जांपल के साथ डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इज वाटर मॉलिक्यूल. सी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 while in case of hydrogen is 2.1. Oxygen having 6 electron in outermost shell, that is 2, 4 and 5 and 6.
हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन. नाउ हियर इन केस दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही आप बॉन्डिंग स्टेट के अंदर से नॉन बॉन्डिंग स्टेट के अंदर चले जाओगे, जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, देखिए यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के यहाँ पे चला जाएगा. यू कैन क्लियरली see from this pictorial diagram, this is more electronegative, so tendency to attract this hydrogen to this oxygen, see, it is clearly goes to this oxygen. So this is how electron negativity is taking part. So across the period means lithium से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, हमने चार्ट में क्लियरली देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, because this effective nuclear charges increases. Effective nuclear charge increases, electron negativity increases. Second point, electron negativity decreases down to the group. As the size increases, force of attraction to this electron to this atom is decreases just because of larger size. Means फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन एंड ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आते आते साइज बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगी तो टेंडेंसी टू गेन इन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल is decreases, and due to this electron negativity is also decreases. Group 18 has zero electron negativity. Obviously group 18 is known as inert gas or noble gas configuration, so they don't want to react chemically, so इसीलिए उसकी electron negativity zero होती है. And electron negativity increases with increases non-metal characteristics. Now non-metal characteristics किस हिसाब से है, तो non-metal कहाँ पे होंगे, टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर आर non-metal. That is कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, डाउन टू द ग्रुप मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स increases. Electron negativity increases with non-metal characteristics increases. Down to the group metal characteristics increases, so electron negativity decreases. So after completion of electron negativity, last point of your syllabus of chapter number 3, that is called is chemical property. Yes, this is your last topic, and then chapter 3 is done. First point is oxidation state. Now what actually means by oxidation state? Oxidation state is a measure of the degenerate or degree of oxidation of an atom in a substances. Basically वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 minus number of electrons. So oxidation state of an atom is nothing but number of electron in valence shell, and you can say that 8 into number of electron in valence shell. ये 8 into number of electron किसके लिए, पीछे के ग्रुप के लिए, मीन्स ग्रुप 15, 16, 17 के लिए. दिस इज फॉर ग्रुप 1, 2 and 13 के लिए. So here in case 8 minus number of electron into valence shell. So oxidation state of sodium is equal to +1. Why? Because group 1 is nothing but general electronic configuration is NS1. So obviously one electron in outermost shell, so that's why oxidation state is +1. Group 2 family member क्या है, NS2, तो +2 oxidation state बन जाएगा. While in case of oxidation state of oxygen is 8 minus 6. 6 किसके लिए? Just because 6 electron available in oxygen. So that's why it's 2. But oxidation state is -2. Why -2? Just because हमने 8 में से माइनस किया हुआ है. Means अब कहने का इंटेंशन क्या है सर, क्लैरिफाई कीजिए. तो what this means? Means oxygen required 2 electron to complete its octet or 8 rule. 8 rule means fulfill electronic configuration, or you can say that nearest noble gas configuration. अगर ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ले लेंगे, नियॉन की है. नियॉन इज नोबल गैस कन्फिगुरेशन. सो दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. Likewise, sodium remove 1 electron and converted into sodium plus and achieve a nearest noble gas configuration, that is +1. सोडियम में नंबर क्या है, 11. अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो नियॉन कन्फिगुरेशन. सो दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. सो ग्रुप वाइज डिस्कशन कर लेते हैं. ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1. मींस ग्रुप 1 का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ग्रुप 2 माने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम.
so that is +2. Why? Because outermost shell के अंदर NS1 NS2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है. ग्रुप 13 मीन्स बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं तो दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. अब 14 की बात करें तो 14 का केस कैसा है कि तो 14 तो +4 भी कर सकता है, -4 भी कर सकता है. कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन. 15 के केस के अंदर बात करें तो आइदर दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन और लॉस 5 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा नियॉन. जो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो 15 + 3 18 मीन्स वो बन जाएगा आर्गन. 16 की बात करें तो 16 कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू आर्गन एंड 16 कैन रिलीज 6 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू नियॉन. सो -2 + 6. जो टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर है जैसे नाइट्रोजन, तो वो कभी +5 नहीं हो सकता है, तो वो -3 ही होगा. इन केस ऑफ ऑक्सीजन वो कभी भी +6 नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिस्टर्ब, तो वो -2 होगा. इन केस ऑफ फ्लोरीन ग्रुप 17 -1 एंड +7, तो फ्लोरीन कैन नॉट रिलीज +7 बट आयोडीन कैन. सो फ्लोरीन का होगा -1 बट आयोडीन कैन +7. तो ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हमें इन डिटेल डिस्कस करनी है जब हम डिस्कशन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ये पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हम पूरा आराम से डिस्कशन करने वाले. दैट इज अ सेपरेट चैप्टर अवेलेबल इन सिलेबस, दैट इज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. वहां पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इन्फॉर्म करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमसे, क्यों पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट? जस्ट बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट से आप वेराइटीज ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट बना सकते हो. मीन्स उसके हाइड्राइड बना सकते हो, क्लोराइड बना सकते हो, ऑक्साइड बना सकते हो, नाइट्राइड बना सकते हो और बाकी सब चीज भी बना सकते हो. तो एटम का केमिकल रिएक्शन और सॉल्ट एनालिसिस कैसे होगा और सॉल्ट कैसे बनेंगे वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता कर सकते हैं. D एंड F ब्लॉक के लिए वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है. सो वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल इन D एंड F ब्लॉक, इसीलिए उसको ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट भी बोलते हैं. सो दैट इज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन 12th स्टैंडर्ड में वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. सो नाउ हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट विल हेल्पफुल टू गिव यू केमिकल रिएक्शंस. अब देखिए ग्रुप नंबर 1 ऑलवेज क्या करता है, +1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है. इन ग्रुप नंबर 17 को क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज चाहिए होगा. तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 की अच्छी दोस्ती हो जाएगी. मीन्स इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन फिजिबल है. नाउ ग्रुप 1 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और ग्रुप 16 जो है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर ऐसे 2 एलिमेंट मिल जाए तो वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ सकते हैं. लाइकवाइज ग्रुप 2 कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस. कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं. देखिए sodium is always ready to release 1 electron, while in case chlorine is always hungry for 1 electron. So by losing of 1 electron, by gaining of 1 electron, there is a ionic bond form, that is NaCl. ऐसे ही आप यहाँ पे KCl बना सकते हो, KBr बना सकते हो, CSCl बना सकते हो और many more constituent बना सकते हो. Another example, Mg gives Mg plus 2 electron. Now oxygen is always hungry for 2 electron, तो वो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ. ऐसा ही आप बना सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड. नेक्स्ट कैल्शियम कन्वर्ट इनटू कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा. यू कैन गेट CaCl2. सो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन यू गेट 2Cl-. सो कैल्शियम एंड Cl2 CaCl2. लाइकवाइज यहाँ पे आप MgBr2 भी बना सकते हो. Al gives Al +3 इलेक्ट्रॉन, O2 + 2 इलेक्ट्रॉन यू गेट 2O2. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा Al2O3. अब क्रॉस वैलेंसीज आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया था कि हियर इन केस +3, हियर इन केस O-2, सो दैट इज +3 -2, तो क्रॉस वैलेंसी हो जाएगी Al2O3. सो लाइकवाइज यू कैन प्रिपेयर अ वैराइटीज ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, अनदर ऑक्साइड्स, हैलाइड्स. आप हाइड्राइड भी बना सकते हो बिकॉज हाइड्रोजन कैन रिलीज. लेट्स टेक एग्जांपल, C + O2 you get CO2, Li + H2, 2Li + H2 you get 2LiH, lithium hydride. Likewise 2Ca + 2 + H2 you get CaH2, calcium hydride. This is you can prepare a hydride also.
So metals react with hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen to get varieties of hydrides, oxides, nitrides, halides, and sulfates, nitrates, or many more salts you can prepare. So here in case oxidation state से उसके salt state का पता चल सकता है. Next, two most important point, that is anomalous behavior and diagonal relationship. So these two property we have to discuss in detail while we are discussing S block and P block analysis. Means पूरा चैप्टर है हमारे पास, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ही इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पे खाली ग्लिम्स या 2 लाइन में डिस्कस किया हुआ है. एनोमलस बिहेवियर क्या है, डायगोनल. डायगोनल नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी उसका डायगोनल एलिमेंट है, मैग्नीशियम के साथ मिलती जुलती है. लाइकवाइज बेरिलियम की बहुत सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलते हैं. दूसरा एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होगा, टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सभी टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर है ग्रुप के. इन लोगों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बाकी सारे फैमिली मेंबर से कुछ अलग है. दिस इज जस्ट लाइक कि आपके फैमिली के अंदर टोटल 5 या 6 कजिन ब्रदर होंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे. मान लीजिए एक संडे किसी एक फैमिली के घर पे गेट टुगेदर है, सारे लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि लेट्स ऑर्डर डोमिनोज पिज्जा. बस उसमें से एक बंदा जो होगा वो बोलेगा नहीं मेरे को साउथ इंडियन खाना है. तो दैट इज कॉल्ड इज एनोमलस. कहने का इंटेंशन कि ये टॉप मोस्ट फैमिली मेंबर है, ये थोड़े से टेढ़े होते हैं बाकी सारे फैमिली मेंबर से. किस हिसाब से, तो ये 4 पॉइंट डिस्कशन कर लीजिए. फर्स्ट इज स्मॉल इन साइज, बिकॉज वो छोटे होंगे तो ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं फैमिली के अंदर. लाइकवाइज ये फैमिली मेंबर के टॉप फैमिली है दैट इज लिथियम, स्मॉलर इन साइज. सेकेंड, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो. थर्ड, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड लास्ट, अनअवेबिलिटी ऑफ डी सब शेल. उसके पास डी सब शेल नहीं है एक्सपांशन करने की, इसीलिए एनोमलस प्रॉपर्टी है. सो एनोमलस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि एक इन डिटेल डिस्कशन हम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में करेंगे, बट एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं. ग्रुप 1 फैमिली सारी आयनिक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो आयनिक सॉल्ट्स बनाते हैं, बट लिथियम कोवेलेंट सॉल्ट बनाते हैं. लाइकवाइज बाकी सारे फैमिली मेंबर जैसे सोडियम, पोटेशियम सब सॉफ्ट मेटल है, जब लिथियम इज रियली वेरी हार्ड वन. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे हैव रियली वेरी विगरस रिएक्शन. तो लिथियम लव्स वाटर. लाइकवाइज बहुत सारी एनोमली डिस्कशन करनी है, बट आई विल कीप इट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के लिए, टाइम बीइंग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते. एक और चीज थी जो मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी है इन लोगों के पास है. लेट्स टेक एग्जांपल, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन मेक अ मल्टीपल बॉन्ड विद देमसेल्व्स आल्सो एंड मेनी अनदर आल्सो. जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ सकता है कुछ से साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ सकता है, कार्बन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड जुड़ सकता है. सो दे कैन मेक अ मल्टीपल बॉन्ड्स विथ ईच अदर. So this is all about your chemical properties and anomalous behavior. So in short, this is all about your chapter number 3. In this session we'll discuss about electron negativity followed by chemical reactivity of atoms. Hope you get this point. If you have any doubt then you can put it. Thank you so much.